पेरेंट्स जिनके बच्चे शायद ADHD में है तो उनको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहता है कि क्या ये कम्प्लीटली क्योरेबल है, क्या ये रिड्यूस हो सकता है? कि वो रिड्यूस हो सकता है डेफिनेटली वी कैन। तो एडल्ट होते होते प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर मिला है तो वो खुद को संभाल लेते हैं। एडल्ट्स में ना शायद डायग्नोज नहीं होगा क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं। दे कैन नाउ अंडरस्टैंड, दे कैन नाउ प्रोबेबली कंट्रोल देयर इम्पल्सेस। एग्जैक्टली कि I think the screen time, mobile phones and everything has also led to a drastic change in the attention yes span. yes yes And मम्मी Insta. पापा खाना खिलाते भी वो दे देता है कि मेरा बच्चा आराम से खाएगा। टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए permanent and then that drastic addiction impact will होगा। go on for years. कि if I ask them, let's say, do you know about Ratan Tata? Do you know about APJ Abdul Kalam? I think they can speak for hours. And if I ask them, can you tell something about yourself? खत्म yes. I think that the Yes. first line is my name is this, my father does मैं तो this, मैं ये बोलती हूँ school मुझे में। 11th 12th में हो ना मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला मत दो। Sometimes, you know, to make it a little more twisting, I say, don't introduce yourself with facts. Tell me something that I don't know. So that is where they fumble. And I'm like कि एक बंदा जिससे आप रोज मिल रहे हो उसी के बारे में आपको नहीं पता है। इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को ये डर रहता है कि टीचर क्या सोचेगा, या टीचर बिजी होगा, या उनको ऐसा लगेगा इतना बेसिक लेवल से नहीं। उनको डर लग जाता है कि भाई गलत हो गए तो I said it's fine, who is perfect? Right? कौन गिर बिना Yes. साइकिल चलाना सीखा है? Exactly. This is one quote which my teacher used to tell me कि if you ask a question, you're dumb for 1 minute. If you don't ask a question, you're dumb for your whole life. Every educator has been there with student that there is something which is not clicking. Is it simple distraction, or it is more specific ADHD, BPD, SLD, or something like that? Hello everyone. Welcome to the Unspoken Wisdom podcast by Beacon Project. So to discuss more on that and to understand concepts about all these things, we have a special guest, Shivani Sutaria. She is a psychotherapist and she has done her MA in psychology and runs Mind Studio at Satellite Ahmedabad. Welcome, ma'am. Thank you, my pleasure. So I have been an educator for years and I have wrestled with uncertainty. Kids have problems in focusing in studies, readings. So how can an educator find out whether they have an syndrome, ADHD, what we call, or it's just a developmental hiccup? So ADHD, if I'll elaborate, is attention deficit hyperactivity disorder. It's a neurodevelopmental disorder, which when you are talking about the school, what happens in short is it is more connected with attention. That is, they lack focus. Issue with impulse. They act impulsively. They don't think. They just go and act. And also they are restless. They cannot, mobility is an issue. They just cannot sit at one place. So that is the nitty-gritty of ADHD, what you call, you know, that hyperactivity आप बोल लो, आप attention deficit बोल लो, but this is all connected to all that. This is one disorder जिसके अंदर ये सब है. So what are the myths and misconceptions about ADHD? There are few. The first and foremost is जानबूझ के कर रहे हैं. Okay. First and foremost, it is like you know, they are just doing because they're lazy. Right. They don't want to do bad behavior. उनको काम नहीं करना है तो वो घूमते रहते हैं. This is the myth that mostly all the educators, till they don't know what is ADHD, they have. Another one is bad parenting. It is not bad parenting. As I said initially, that it is neurodevelopmental disorder connected to brain. Okay. So it is something which is happening inside. It's not something they're doing it deliberately. Then one more, a very prominent one again is like it is only with boys. No, it is not with boys. It is with girls also. Maybe the symptoms can vary, but it is with girls as well. And another one is that it does not happen to adult, but it happens. Maybe the adults, you know, the symptoms can go unnoticed, undiagnosed, but it is not like it is only with children. It goes on with the adults also. These are the few myths of ADHD, which I think not only the educators, many of them who just know what is ADHD will say that it is like that. Yeah, but reality is different. So let's say I'm an educator, Yeah. and I want to find out whether the student has ADHD or it's boredom or it's inattentiveness. What are the markers or patterns which I can see? As an educator, the first thing when practice or someone, you know, comes, the child
has probably ADHD, the first symptom that they come and describe is the child is unable to sit in the class. थोड़ा काम करते हैं and they keep on moving. मतलब 2 lines, 3 lines they wrote, they start moving here and there and disturbing others. Friendship, they cannot make friends. Oh, okay. Because you know they are so impulsive, they are distracted, and they cannot retain that friendship, they cannot make that friendship, and even with the peers, the classmates, they fight. So this is another symptom. Third one is they lose their stationery a lot. Okay. खो देते हैं. आपने उसको पेंसिल दिया, इरेजर दिया, शार्पनर दिया, Right. आए दिन यू नो घर पे वो मम्मी बोलते हैं कि मैडम इसका खो गया, नहीं मिल रहा है, कहाँ गुम गया पता नहीं, दे फॉरगेट. Okay. मोबिलिटी जैसे मैंने बोला था उसमें एक आपका फिजिटी आ जाता है, कांस्टेंट हैंड मूवमेंट, फीट टैपिंग, ये सारा चलता है. इम्पल्सिव, इफ आई गिव यू द एग्जांपल, इफ अ टीचर इज टीचिंग, राइटिंग समथिंग ऑन बोर्ड and the student sees that उनके टेबल पे ना मेरी बुक पड़ी है with the other books also with of other students, and the child will feel that it's my book, I want to take it. But ideally in any classroom students cannot stand up and go and grab the book, you know. They Agreed. always take the permission or the teacher tells that you know come and take the book. But उनका impulsive ऐसा होता है behavior that they just stand, They don't they just wait. scatter other books, take my book and I'll go back. This is what impulsive behavior, they don't think, they just act. Okay. So this is another thing. And you can say that they are very much having anger issues also. Many a times you see anger in them because they are unable to explain themselves. Right. So उस केस में वो anger भी आ जाता है. But these are the few prominent ones which anyone with ADHD, they come up, they forget, they're disorganized. Yeah. They cannot, you know, do something which has something very much organized task, Patience and patience, everything. Okay. everything, you know, quick. 2 minute, 3 minute. If I'll say the attention span, for example, person like you and me, we are non-ADHDs. So our attention span, if we see, 15 minute तक तो हम बैठ सकते मिनिमम फोकस कर लेंगे किसी के ऊपर. कभी क्लास में कुछ में ये लोग नहीं कर पाते. फॉर देम इट इज लाइक 5 minutes, कुछ कुछ उससे भी कम. To keep attention is a problem. That is why attention deficit, you know. I think I saw something related to this कि अगर ADHD है या नहीं तो वो हर जगह ऐसे ही impulsive होंगे. They'll you know they'll Yes. move around. Yes. They'll Yes. look for different things. Yes. And so that is not just for like studying at school. No, That no. is as well Yes. as for screen times, TVs. They'll Everywhere, move and everywhere. think that As is I a said, you know, important friends marker. नहीं, socially they are not that good. Right. Because वो नहीं relationship बना ही नहीं पाते. क्योंकि उनको अपने वे पे चीजें करनी है Right. और दूसरे करेंगे नहीं. तो Agreed. they'll fight. So no friends. Right. So it's a step. Yes. by So anger आ जाता है कि भाई you are not doing what I'm trying to do. आप नहीं कर रहे हो. वो maybe the opposite child will not be ADHD. Right. उनको वो जबरदस्ती नहीं अच्छा लगता है. But then they'll not like if you will not follow what I am trying to say. That is what the ADHD typical child is. So let's say I'm an educator. I find out this markers and this patterns in some kids. So what are in-class strategies that an educator can do? In class, the max, what I always tell, if a parent comes to me, if an educator comes to me, that make the child sit at front. तो डिस्ट्रैक्शन का जो दूसरे एंगल्स होता है ना, ऐसे साइड में दूसरे बच्चों को देख लिया, कुछ हो गया, तो कम से कम वो थोड़ा हम नैरो डाउन करेंगे. नैरो डाउन, इट इज नॉट Right. कम्प्लीटली शट. Right. बिकॉज दे विल, एनी साउंड विल कम, दे विल रिएक्ट. कुछ भी, जैसे हम बैठे हैं राइट नाउ, वी आर सिटिंग, इफ सम साउंड कम्स, वी आर बिजी डिस्कसिंग. Right. वी माइट नॉट रिएक्ट दैट व्हाट साउंड हैज कम, बट एक साउंड आया ना, वो पूरा घूम जाएंगे उस साइड के, भाई क्या था. यू नो, अनदर थिंग दैट दे कैन डू इज दैट दे कैन रिड्यूस द टास्क, स्मॉलर टास्क. जैसे कुछ काम है, आपको एक पैरा रीड करवाना है उनसे, या एक चैप्टर या एक पेज रीड करवाना है, आपको पता है उसमें 5 पैराग्राफ्स है. नाउ इफ यू टेल दैट चाइल्ड टू रीड 5 पैराग्राफ्स, आप एक भी पढ़ा लो बहुत है, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे. सो आप उसको थोड़ा टास्क रिड्यूस करो माइक्रो लेवल पे, इन अ वे दैट यू गिव फ्यू लाइन्स. ओके, यू फिनिश दीज लाइन्स, लेट द चाइल्ड रीड. फिर उसको 5 मिनट जो उसका स्पैन है ना, उसको वो अपने आप ही रुक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. उसके बाद अगेन यू कैन मोटिवेट, डू इट. यू कैन ऑल्सो मेक हिम मूव, मेक हिम और हर, जो भी है, आप उसको मूव करवा सकते हो. अगर उनको वो रेस्टलेसनेस होती है कि भाई थोड़ा टाइम हुआ नहीं, कि भाई आई एम सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, आई नीड टू गेट अप, आई नीड टू डू. सो ठीक है, यू कैन allow them to stretch. You want to sharpen the pencil, go and sharpen the pencil.
supporting what they supporting because if you'll restrict them, yeah जैसे हमने मिथ की बात की थी ना, एक वो भी होता है कि एजुकेटर्स को लगता है कि हमने अगर उसको बोल दिया कि बेटा खड़ा नहीं होने का, you know, you sit. I think the aggression will increase Yes, eventually. so they will against not understand that language. Okay, I have to sit, you know. तो आप उसको बोलोगे बेटा बैठ, तो वो नहीं बैठेंगे क्योंकि वो उनको वो है, they are, as I said, they are not in that control that we have to listen, we have to understand. वो उठ के मतलब वो करेंगे ही जो उनको करना है. So you give them that time. You can handle them better. makes sense, and I think they'll feel that we are on Yes, their side yes, rather than we yes, are in yes. against, right? इससे एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि किस लेवल पे टीचर को या पेरेंट को किसी प्रोफेशनल से, किसी साइकोथेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए. I think I would say that if it happened, say ADHD child, it's not that in a day it will happen only once. ADHD child, the whole day you'll see the traits, right? 1 day, 2 days, if you see it is not stopping, I think maybe 3-4 days you have to tell that something is not okay. Right. So, and today in lots of schools they have counselors, they have special educators. इसमें तो खैर special educators नहीं होते, but counselors matter होते हैं यहाँ पे. They can always report like this is what we are noticing, and the counselor after that will take a note of it, assess अपने level पे जो भी उनको करना होता है, and after that if they feel there is a need to send the child to the professional, maybe a psychiatrist, maybe a psychologist outside somewhere for the therapies and all, they'll refer outside. They'll first of all tell the parents also that, you know, you need it. I mean, the child need it. आपने जैसे असेसमेंट का बोला, ADHD में कैसे असेसमेंट्स होते हैं जिससे पता चलता है कि Assessments in ADHD is totally up to the counselors. Basically तो symptoms ही होते हैं. Right. Basically the symptoms itself gives away. And diagnostic manuals होते हैं हमारे, honestly. So if the child falls in that criteria, then we say it is. फिर वो छोटे छोटे जो उनके होते हैं internal, आप देख लो थोड़े educational level पे, फिर कुछ behavioral level पे, वो अपने आप करवा लेते हैं. Otherwise diagnosis के लिए we have the criteria which we follow. So ADHD में एक last question before we jump to the next thing. ADHD में बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि when they reach out to counselors or when they reach out to psychologists, उन बच्चों को खुद में एक वो अंदर रखता है कि why are we visiting counselors? Even parents these days, you know, वो एक stereotype हो गया है कि अगर psychologist को या counselor को जा रहे हो तो I'll say bluntly कि बच्चा पागल है, क्या उसको न्यूरोलॉजिकल कोई इम्पैक्ट है या नहीं. तो हाउ कैन दिस, यू नो, वी कैन मेक इट मोर इजी, या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल गोअर्स, देन द फर्स्ट थिंग एनी स्कूल गोअर student, I would rather reframe. I would say that what first thing should be done is the educators should first understand that why they're sending the child to the counselor. अगर वो ही एक एक बना देंगे, अरे यू आर बिहेविंग लाइक दिस, यू नीड टू गो टू द काउंसलर्स, तो वो स्टूडेंट के दिमाग में आएगा. यस, पेरेंट्स ऑल्सो दे मेक, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग, बट व्हेन वी आर टॉकिंग at school level, then first of all school, I mean the teachers, they need to put it in a very correct way. I think yes, redirect, they don't have to make them feel like, you know, अरे आप तो उधर जा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, आपने ये किया है ना, अब तो आपको वहां जाना पड़ेगा. If you'll make the counselors as villains, for example, you know, because you are doing this, you have to go there. The student will feel that मैंने क्या ही कर दिया है कि आप मुझे भेज रहे हो वहाँ पे. Agreed. You know, which is not like that. On the contrary, it's different. With the counselors, I would say, with other fellow counselors also, I have seen they also all say the same thing, that, you know, we actually bring that change in the child's life. Definitely. We are not someone जिसके यहाँ आके child कभी depressed हो जाएगा. You know, that they'll become better. I think इसे emotionally बहुत, you know, emotional support के जैसे put out करना चाहिए. और अगर हम ADHD की बात करते हैं ना, the thing is that if the child is say in pre-primary or 1 to 5 or maybe 6, 7, 8 तक भी, they are not that much aware about why I'm going to a counselor. They're still very young to understand that concept. So they generally go as the teachers take them. This what you are trying to tell comes with adolescence. मैं जब बच्चों को बोलता हूँ कि go consult, या पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, बच्चों को तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलता, but as an educator when I just say कि go consult with a psychologist or a psychotherapist, and I have hardly seen any parent coming back and saying, oh, it was a great discussion with a psychologist, and I think even if everything was perfect,
it is a great thing to have a support or someone to guide with that thing. yes. But parents ही first step नहीं लेते हैं, हाँ, तो I think वो बहुत दिक्कत होता है. दूसरा, पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि एडुकेटर्स ये स्टेप ले, क्योंकि अगर हाँ, हमने उनकी yes. कंसेंट के बगैर अगर Yes, yes, yes. काउंसलर से कंसल्ट भी Yes. करवाया, तो आई थिंक दे मेक अ बिग फस अबाउट इट. Many a times, yes. हाँ. Sometimes they don't. ओके. They always say that, why my child was sent over there. Why I or if they are both the parents, then why we were not asked, can we send the child to the counselor? Agreed. In my case, what happens is at Mind Studio, I get the parents who are willing. Right. They know why they're coming. But when you're talking about school scenario Hmm. or anywhere where the kids are involved and they're minors, they are Right. not the decision makers. There, if we do all this, then the parents will come. And few of them are very cooperative. I would say it's not always. Right. Few of them are very cooperative. They know when you call, when you meet them, they know that why we are called, what is the issue. They also discuss that yes, these things are going on with my child. So you tell us what to do. Right. How can we, improve his mental health, etc. So I think the why is important. Yes, Is it yes, solution yes, oriented, yes. or is it like asking why our Yes, consent was not there? I yes, think the invisible yes, yes. statement was there. Okay, moving to next thing. From ADHD, there is one more thing I think which the students have been diagnosed with, or I'll say we have looked for that. That is SLD, I think, which is dyslexia, dysgraphia, dyscalculia. Yes, yes. एंड मुझे जहाँ तक मैं एडुकेटर हूँ, मुझे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब पता चला कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. हाँ. जब मैंने CBSE का करिकुलम देखा और उनका सारे नॉर्म्स देखे, तब पता चले दे डू ऑफर अ Yes. गुड हैंड टू दे ऑफर अ गुड लेवरेज टू दोज किड्स की अगर आप नहीं हैं तो यू कैन चूज अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स. Yes. तो आई थिंक ये अवेयरनेस ही नहीं है. तो नहीं है, कैन यू बिल्कुल. बिफोर दिस कैन यू टेल आवर ऑडियंस की SLD क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है इन ब्रीफ? So SLD, specific learning disability, ओके. is one big tree जिसके अंदर की कुछ ब्रांचेस है, जिसमें एक है dyslexia. I'll just take one after the other. Dyslexia is basically more with reading. Reading and anything related to reading it comes under the dyslexia branch, I would say. So what happens over there is, if you see a student who is doing other things well, but Right. when it comes to reading, the child fumbles in a way that I would just give you one example, that if I am given this much paragraph, Right. this much, I will read it probably in 30 seconds or a minute, not more than that, right? Agreed. You take that same para with the child having dyslexia. Okay. The child will take at least 20 minutes. That too after a lot of prodding. What happens in that is they are distracted. So before I start why they are distracted, I would just say that learning disability is the gap between your chronological age and your academic age. So if your chronological age is say 12, and if you do the assessment, we'll talk about the assessment later, but if you do the assessment, it turns out that your academic age is somewhere 7. Okay. So that's 7 and 12. I think it's 5 years. That gap is there. So if Okay. you're making the child study 12 years, I mean, the child would be in 8th, if I'm not wrong. So you are asking the child to read that standard 8th English para. But the child is somewhere In- 7 years, would say class 1 or 2 Agreed. in English. He or she doesn't know what is. So they might read few words, 1 2-letter word, 3-letter word, and rest goes in guessing. They'll omit words, lines. And they'll skip Yes, those they'll words. add certain words which are not there, Okay. right? And they are distracted. ये पढ़ते पढ़ते कहीं यूं देख लेंगे because नहीं आ रहा है, क्या समझ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. These things happens in dyslexia. Reading, when I talk, this is the typical scenario. So that is dyslexia. Now coming to dysgraphia. So dyslexia was more with reading. Reading part. Dysgraphia is writing. Okay, writing and associated with it. The first thing, handwriting not legible. To that extent that समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है. Right. है ना, कुछ वर्ड्स आ जाएंगे and many spelling mistakes, like one word, they'll write that word in 4-5 ways Okay. and you will not know what they have written. Right. Same like dyslexia, omissions, additions, guessing Guessing them. the spelling.
when you read, you'll understand Right. that something is wrong. This is dysgraphia. And when we call dyscalculia, as it suggests, Calculate. numbers, Right. right? The student is not good with it. They don't understand numbers. To that extent, उनका basic maths ही नहीं है ठीक. आप उसका ascending descending ले लो, number names ले लो, फिर तो आप जाओ आगे, you take addition, subtraction, multiplication and other things, नहीं होता. Basic level से बेसिक ही उनका वीक है. weak है. मतलब जैसे इंग्लिश की बात करें तो फोनिक्स वीक है ना. वो जो होता है ए सेज ए, बी सेज ब, तो जो ये तीन होते हैं, दीज आर द 3 ones व्हिच आर मोस्टली सीन. एंड व्हाट हैपेंस इज के आप उनको 3 लेटर का वर्ड है, 4 लेटर का वर्ड है, मुश्किल से पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं. आई हैंड कोऑर्डिनेशन इज वीक, अगेन अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. आई हैंड कोऑर्डिनेशन वीक है, तो अगर आप उसको कॉपीराइट करने को बोलोगे तो वो ना बोर्ड से कॉपी कर रहे हैं, खो जाएंगे कौन सी लाइन में थे, है ना. सो दे आर अनेबल टू देन, फिर वो ढूंढते हैं कि कहाँ से करना है. सो रीडिंग में भी हम करवाते हैं ना, तो वो फिंगर रख के भाई आप ट्रैक लूज मत करना. दैट इज अ टिपिकल SLD. In dyslexia, we'll go one by one. Dyslexia में जैसे कई बच्चों को ऐसा होता है कि पढ़ना कुछ टफ वर्ड्स हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट कैसे पता चले ये डिसलेक्सिक है या नहीं है एट एन एजुकेटेड लेवल. तो क्या पैटर्न्स है, क्या मार्कर्स है, क्या इंडिकेटर्स है? सो आई वुड से कलेक्टिवली डिसकैल्कुलिया को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं, बिकॉज वो पूरा मैथमेटिक्स है, नंबर्स, वो उसका एक अलग असेसमेंट है. बट यहाँ की जो बात करते हैं तो इट इज़, आप उसमें देखोगे जो प्रोमिनेंट साइनर्स जो मैंने बोला, टेकिंग टू लॉन्ग टू रीड, टू लॉन्ग टू राइट, एक तो आपका हो गया. सेकेंड वन इज मिरर इमेज, है ना, WM BD 6 9, वो एक टिपिकल अगेन एक आपका साइन है. अलॉन्ग विद दैट वही आई हैंड कोऑर्डिनेशन वुड बी द थिंग विच इज अ बिग मार्कर फॉर यू कि नहीं कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है. दे आर एकेडेमिकली अंडर अचीवर्स बिकॉज नहीं वो कंप्लीट कर पाते, नहीं कर पाते एज गैप की वजह से. बट IQ वाइज दे आर अगेन एवरेज टू अबव एवरेज. दे आर नॉट बिलो एवरेज. वो ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग नहीं है, दे हैव ब्रेन्स, दे हैव ब्रेन्स, पर वही है एज आई सेड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. सो दैट अगेन जो ADHD में था, इसी तरह इसमें भी दे आर बेसिकली अनेबल टू, बिकॉज वो गैप रह गया है, वो लेवल पे नहीं पहुंचे जहाँ पे वो कर सकते हैं जो आप उसको करवा रहे हो अभी. सो एज एन एजुकेटर, लेट्स से आई रन एन इंस्टीट्यूट, या स्कूल लेवल पे डिसलेक्सिया है या डिस्ग्राफिया है, तो इनके लिए क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या उनके लिए अलग क्लासेस होने चाहिए, या क्योंकि हम जब किसी भी बच्चे को अलग क्लास में रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पेरेंट को ऐसा ये लग जाता है कि क्या हमारा बच्चा स्पेशली एबल्ड है या नहीं है. अलग स्कूल में ही रख रहे हैं जो इसके लिए है, तो आई थिंक they'll बी मोर ओपन टू दैट. बट सेम स्कूल में क्या स्कूल को ऐसा एडमिशन लेना चाहिए, लेने के बाद इफ़ दे आर फाइंडिंग आउट द स्टेट्स, तो क्या उनको कंसल्ट करके डू दे हैव टू पुट डिफरेंट बैचेस, या CBSE कोई ऐसा कोई नॉर्म लाना चाहिए कि अगर कुछ है तो एक अलग बैच है, एक अलग क्लास है इन बच्चों के लिए? Yes, so yes, I would say that ये जो बच्चे हैं वही स्कूल में पढ़ने चाहिए जहाँ दूसरे बच्चे पढ़ते हैं. एंड द बिगेस्ट रीजन इज एज आई सेड उनका IQ बिल्कुल ठीक है ना. दे आर नॉट हैविंग दैट बिलो एवरेज IQ या उससे कम जहाँ हमें लगे कि वो मेन स्ट्रीम में दे कैन नॉट फंक्शन. दे कैन वेरी मच फंक्शन in the mainstream. Yes, when you say what should be done for them, I would say that उनके अलग IEPs बनते हैं, individual education plans बनते हैं, जहाँ पे उनके पेस पे हम वही सिलेबस कैसे पढ़ा सकते हैं. ठीक है, जैसे ओरल्स थोड़े ज़्यादा करो, दे वेरी गुड ओरली. सो आप रिटन में कुछ दोगे वो शायद नहीं इतना कर पाए, पर वही चीज़ आप उसको ओरल में पूछेंगे, they'll be able to give the answer. Top of it again, आप थोड़ा उनका जो है पोर्शन थोड़ा माइक्रो लेवल पे रिड्यूस इन द सेंस वही चीज़ कराओ, बट उनको छोटे छोटे में डिवाइड कर दो, बाइट they'll be able to do it. एंड टॉप ऑफ इट उसके अलावा भी आप अगर लग रहा है कि रीडिंग प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, तो आप उसको पढ़ के दे दो. मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जनरली 6th 7th
तब तक तो वो टीचर्स को भी हम बोलते हैं कि भाई अगर वो रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं आप उसको क्वेश्चन रीड करके बता दो क्या है, आप मत एक्सप्लेन करो, आप रीड करो। सेम राइटिंग में जहाँ तक बात है, अब सीबीएसई की आपने बात की, तो सीबीएसई तो ये प्रमोट करते ही है, सीबीएसई दैट यू नीड टू हैव देम इन द मेन स्ट्रीम, inclusive education is what CBSE promotes. So that is why CBSE says that, you know, आप counselor तो रखो ही रखो स्कूल में, you also keep a special educator because they are the ones who will work with them, है ना, वो IEPs वगैरह वो बनाते हैं, Right. they make it, they educate the teachers Okay. that how to handle them in the classroom, इनका कैसे करवाना है, क्या करवाना है, तो ये सब कुछ स्पेशल एजुकेटर्स करते हैं। सो सीबीएसई इज़ वेरी मच इनटू दिस एंड वो इंक्लूसिव में बिलीव करते हैं। दे से दैट यू नो दीज चिल्ड्रन ऑल्सो, बिकॉज एज आई सेड दे आर Good with their IQ. Exactly, they should not be said that you know आप कोई स्पेशल स्कूल में जाओ, नहीं, Okay. वो पढ़ लेते हैं एंड दे आर वेरी गुड क्रिएटिविटी। मैंने जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स देखे हैं, दे ऑल ईदर किसी में भी, मे बी उससे म्यूजिक, मे बी उससे डांस, आर्ट, दे डू वेरी गुड। मे बी पढ़ाई में थोड़े वीक जाएंगे बट वो लेवल पे दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड। जैसे किसी भी एजुकेटर को पता चलता है कि डिसलेक्सिया है या कोई भी एसएलडी है, तो व्हाट आर द थिंग्स टू कंफर्म, एंड आफ्टर कंफर्मिंग दोज पैरामीटर्स हु कैन दे कंसल्ट? यस, सो पैरामीटर्स तो हमने देखे, आप उसको कंफर्म करने के लिए मैं एक स्टैंडर्ड एक टूल आई गिव ऑल द एजुकेटर्स टुडे। कुछ नहीं है ना आपके पास, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर एजुकेटर्स, वो असेसमेंट नहीं कर पाएंगे, बट हम उनको इतना करवा सकते हैं कि उनको पता चले कि कुछ गड़बड़ है। सो व्हाट दे कैन डू इज, आप जो भी स्टूडेंट है, यू आर सस्पेक्टिंग दैट द चाइल्ड माइट हैव एलडी, माइट हैव, टेल द स्टूडेंट टेक दैट इंग्लिश का टेक्स्ट बुक, टेक द नोटबुक ऑफ इंग्लिश, अगर डिसकैलकुलिया है तो आप मैथ्स ले लो इन दैट वे, कॉल द स्टूडेंट, ask the student to read just one paragraph, वही एज, वही फॉर एग्जाम्पल 8th स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे तो 8th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक, टेक एनी रैंडम चैप्टर, टेल द चाइल्ड टू रीड दैट वन पैराग्राफ। जो मैंने बोला था ना वो आपको दिख जाएगा वहाँ पे, दैट द चाइल्ड इज अनेबल टू रीड। ठीक है, आप उसकी नोटबुक चेक करो, जो मैंने बोले थे कि लेजिबल नहीं है हैंडराइटिंग, फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो भी आपको दिख जाएंगे। हाँ, और कुछ नहीं तो आप उसको करवा सकते हो, जैसे आपने जो पैरा रीड करने का बोला ना, आप उसको बोलो इसको कॉपीराइट करो, तो कॉपी राइटिंग में भी दिख जाएगा गड़बड़ आपको, है ना, वो वही कोऑर्डिनेशन, टच छूट जाएगा, कुछ और ही लिख रहे हैं, देख के भी कुछ गलत लिख रहे हैं, ऑल ऑफ सेकंड लाइन से थर्ड लाइन में स्किप कर रहे हैं, राइट। मोर देन दैट यू कैन ऑलवेज गिव, आप उसको मीनिंग पूछो, यू नो इफ यू हैव रेड इट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, सिंपल वर्ड्स ले लो, वी आर नॉट सेइंग दैट एकदम कॉम्प्लिकेटेड, बट सिंपल वर्ड्स ले लो, बता पाए तो ठीक है, मोस्टली नहीं बता पाते। देन यू गो टू कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस बनाओ, आपको वर्ड दे रहे हो, आप सेंटेंस बनाओ, व्हाट कैन यू मेक, कोई भी वर्ड ले लो, एनिमल, सो व्हाट सेंटेंस विल कम विद एनिमल, देखो बनाते। कॉम्प्रिहेंशन, आप क्वेश्चंस दे दो, बोलो लिखे, ये सारे टूल्स ऐसे हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड हो रहा है या हो रही है, यू नो, दीज आर द टूल्स जो स्टैंडर्ड हम लोग भी करते हैं जब हम बिफोर असेसिंग people like us also we take that कि भी एटलीस्ट बेसिक तो पता चले कि कहाँ गड़बड़ है, फिर अगर लग रहा है कि नहीं नहीं है, then we go for the standard assessments and all. Yes. Okay. तो प्राइमरी लेवल पे पेरेंट या एक एजुकेटर जिसको काउंसलिंग नहीं पता है, जो स्पेशल एजुकेटर नहीं है, वो क्या स्टेप कर सकते हैं विच कैन मे बी इम्प्रूव देम एज वेल एज कम्फर्ट देम कि ये बड़ी चीज़ नहीं है, वी कैन बीट दिस थिंग? First of all, acceptance. Okay. Toughest thing. First of all, acceptance. Once you do that, the things will be simple. And support. Don't push the child. वो, as I said again, harping on the same point, it's a neurodevelopmental disorder. तो आप बोलोगे कि बेटा एक पैराग्राफ पढ़ ले, हो जाएगा, कैसे नहीं हो रहा है? जब बच्चे को 8th स्टैंडर्ड का समझ ही नहीं आ रहा है, आप उसको बोल रहे हो बेटा तू 8th स्टैंडर्ड का पढ़, it's not possible. So what they can do as parents and educator is support the child. First of all, accept, support, what are the needs, आप दीजिए उसको, है ना। If you, as I said, if he needs someone to read the questions, give someone. जैसे CBSE की अगर बात करें तो CBSE तो देता है concessions, वो concessions पे हम आएंगे, but वहाँ पे तो scribe भी मिलता है आपको, when you go to the board exams you get the scribe also. So whatever you can do to help the child, you do it as a because हम उसको प्रेशराइज करेंगे, जैसे मैंने देखा है विद द पेरेंट्स ऑल्सो, व्हेन आई मीट दैट एज ग्रुप, कभी मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं वो विद दैट कंसर्न, आई ऑलवेज से दैट भाई आप एक बात समझो उसको लेमैन में, कि जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है, वेरी फेमस सीन ऑफ दैट मूवी तारे ज़मीं पर, इफ यू नो, है ना, जब आमिर खान गया था वो लड़के के घर पे
और वो पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो तो नहीं ऐसा, ही इज नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली। तब उसने एक चाइनीज कोट उसको बोला था, वो क्या लिखा है आपने पढ़ा? फादर सेड दैट वो तो चाइनीज है, हाउ वुड आई नो? तो बोले दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट ही इज नॉट नोइंग, आप उसको बोल रहे हो तू कर। दिस इज द थिंग। सो what max the educators and the parents can do is first accept, if it is diagnosed, then first accept that yes, this child, or if the parents are there, then my child is having it, what I can do, and first अब वो हटा दो दिमाग से कि लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब मेरा चाइल्ड अब नॉट, नहीं, पेस अलग है, लर्निंग पेस अलग यस। है। जैसे स्लो लर्नर्स की बात करें ना, तो वो हाँ। डिफरेंस होता है। अब Right. वो स्लो लर्नर भी इसमें आ जाता है, वो हाँ। स्लो लर्नर तो कैटेगरी अलग है। जैसे इसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और आईक्यू इज ओके। स्लो लर्नर की अगर बात करें ना, तो उसमें क्या होता है दैट वो पीछे ही चलते हैं अपने पेयर्स से, वो कैचअप नहीं कर पाते, है ना। उसके बाद उनका एक्सपोजर, कल्चरल एक्सपोजर ऑल्सो मैटर्स। अब आप कोई 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ले लो जिसने 5th तक प्रोबेबली हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, नाउ द पेरेंट्स थॉट दैट नाउ आई नीड टू पुट माई चाइल्ड इन इंग्लिश मीडियम। नाउ द चाइल्ड हु हैज thoroughly throughout studied in Hindi medium comes to class 6th in English medium, he or she might have studied English little bit lower level पे, now full fledged in English, how will the child catch up? तो वो पेस में ही डाउन हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। many a times they ये तो एक एग्जांपल है, दूसरे में भी the one who has probably below average IQ also will be a slow learner because नहीं वो कैचअप कर पा रहे दूसरे पेयर्स के साथ। इनका अलग है, अगर वो गैप नहीं होता तो वो कैचअप कर लेते। So it is not neurological. Yes. Okay, it's environmental factors and so other वही factors. पेरेंट्स का है ना, उनको मतलब पहले तो वही है कि आप समझो, आप इतना करोगे उनके पीछे, एंड द पॉइंट इज दैट द स्टूडेंट इज विल नॉट बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड what is happening to me. Agreed. He or she might tell you, but वही है ना जो मैं पहले बात की थी, वही आ जाता है, नहीं तुमको पढ़ना नहीं इसलिए जानबूझ के बोल रहे हो। Agreed. But the So student we don't try to find the root cause of exactly. it. That is where I think the Yes. gap is. तो जैसे आपने बोला CBSE स्क्राइब लेने देती है ऐसे बच्चों के लिए, तो लेट्स से पेरेंट्स है या एजुकेटर्स हैं, हाउ विल दे नो कि ये डिफरेंट बोर्ड्स हैं, लेट्स से CBSE है, अदर एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू यू नो फॉर एन एजुकेटर और पेरेंट टू नो कि अगर उन्हें डिसलेक्सिया है तो क्या स्टेप्स हैं कि वो स्क्राइब ले सकते हैं, या क्या सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, क्या डायग्नोसिस टेस्ट वैलिड होते हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट्स टॉक अबाउट असेसमेंट। सो फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी जहाँ पे IQ एक पहला क्राइटेरिया है, दैट इफ अगर IQ नॉर्मल है तो अगेन वी मूव अहेड विद द अदर असेसमेंट कि देन लर्निंग डिसेबिलिटी हाई चांसेस। बट IQ ही अगर डाउन है तो मतलब कुछ और भी कंडीशंस है इसके। सो फर्स्ट इज IQ, देन आपका एक टिपिकल SLD का टेस्ट होता है जो जानकार है वो लोग लेते हैं, उसमें सारा आपका रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, एवरीथिंग दे असेस, एंड बेस्ड ऑन दैट वो निकालता है फिर कि भाई क्या है, वेदर इट इज डिसलेक्सिया, वेदर इट इज डिसग्राफिया, वेदर इट इज डिसकैलकुलिया, कुछ को सब भी होता है। मेनी स्टूडेंट्स विल हैव मोर देन, yes that happens, and if it is diagnosed, अगर हो गया कि दिस चाइल्ड इज हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटी, फिर आएगा कि इसको हम अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। सो लेट मी जस्ट डिवाइड देम इन 2 ways। एक होता है आपके क्लास 7 तक 8 तक का, जहाँ पे आप असेसमेंट, यू कैन ऑलवेज गो टू एनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हु इज RCI रजिस्टर्ड, हु विल डू दी असेसमेंट, है ना। वो असेसमेंट करेंगे, वो अपना जो भी असेसमेंट है उसका रिपोर्ट देंगे, साइन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दे विल गिव टेल यू वेदर दे आर देयर नॉट देयर। वो 7th 8th के स्टूडेंट का, और वो नीचे रिकमेंडेशन भी देते हैं कि क्या करना चाहिए, व्हाट दे नीड, व्हाट आर द नीड्स, व्हाट द स्कूल, व्हाट द पेरेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा हैव टू डू फॉर दिस चाइल्ड। और एक हम बात करेंगे 9th ऑनवर्ड्स, बिकॉज 9th ऑनवर्ड्स जनरली कोई भी बोर्ड ले लो वो बोर्ड के ईयर्स आ जाते हैं ना। तो देन 9th ऑनवर्ड्स व्हाट हैपन्स, इफ आई विल टेल यू अबाउट CBSE बोर्ड, तो वो आपको असेसमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भेजते हैं, है ना। बिकॉज बोर्ड विल, इफ यू पुट दैट चाइल्ड, उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, इफ यू पुट दैट चाइल्ड दैट द चाइल्ड इज हैविंग CWSN, मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड, तो आपसे उसका प्रूफ मांगता है कि भी क्या है। तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो चाइल्ड को भेजना पड़ता है फॉर द असेसमेंट। वहाँ भी सेम साइकोलॉजिस्ट वगैरह, वो RCI रजिस्टर्ड है, साइकाइट्रिस्ट सारे होते हैं, वो असेस करते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट में होता है उनका डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है, वो आपको बोर्ड को सबमिट करना पड़ता है। वो बोर्ड एक्सेप्ट करेगा, वो ही करेगा। अगर आप बोलोगे आप प्राइवेट क्लिनिक पे जाके
आप ये उनका करवाओगे हाँ, तो बोर्ड विल नॉट एक्सेप्ट इट. ओके, वो खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का लेते. सो Right. यू टेक मेंटल हॉस्पिटल, यू टेक सिविल हॉस्पिटल्स, एनी कोई ऑफ द भी. वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. सो वो एक सर्टिफिकेट आपको बोर्ड पे चढ़ाना पड़ेगा. वंस यू डू इट and once the window opens, the board will then ask what concessions you need for the child. Okay. So dyscalculia, if it is there, we always say that you can change that subject. Yes. आप मैथ्स निकाल सकते हो और दूसरा और elective. दूसरा कुछ ले सकते हो. सिंपल सब्जेक्ट जो बच्चा कर सकता है, Right. है ना. तो वो उसमें सब कंसेशंस आपको बोर्ड देता है. अलॉन्ग विद दैट वो सर्टिफिकेट के बेस पे उसमें भी लिखा होता है कि क्या क्या बच्चे को करना है. तो अगर आप बोलोगे कि मुझे स्क्राइब चाहिए, आई हैव फॉर एग्जांपल डिस्ग्राफिया, मुझे नहीं लिखना आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो आप स्क्राइब ले सकते हो जहाँ पे बच्चे के साथ वो स्क्राइब बैठेंगे. बच्चा जो जो बोलेगा द स्क्राइब विल राइट. सेम गोज विद द रीडर, दैट समवन शुड रीड द क्वेश्चंस फॉर मी. वो लिखेंगे. टाइम, they get 1 hour extra also to write. So अगर वो है तो आप मांग सकते हो कंसेशन में कि मुझे 3 घंटे का पेपर है but I need 1 hour more. So the board will give you that also, only based on the certificate. I think most of the people, most of parents, educators also don't know this until and unless they have been into school. तो उनका एक मिथ भी आता है इसमें, यू नो, कि फिर हमारे बच्चे के सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे ना आ जाएगा कि ये डिसेबिलिटी वाला है. नहीं आता है. अच्छा. बोर्ड डजंट डू दिस. नो, उनको पता है वो मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं नॉट टू कैटेगराइज देम, है ना. वो आपको बोर्ड ये इसलिए करवा रहा है कि आपको एक एडवांटेज मिले. Agreed. Because your child is like this, the board is giving that thought that you should. अगर मिल रहा है तो आप क्यों नहीं ले रहे हो. तो एजुकेशन बोर्ड ये मेक श्योर कर रहा है कि Exactly. पेरेंट्स को ये चिंता नहीं करनी है Exactly. कि आपका बच्चा अगर मैथ्स स्किप कर रहा है तो विल नॉट पुट इट आउट इन द मार्कशीट. Exactly. विल जस्ट मेक इट सो नॉर्मल दैट इट विल बी नॉट. क्योंकि आप NEP देख लो हमारा जो आया है, उसमें what have they are made saying sure, that आप ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा. हाँ. You can choose whatever subject you want to study. So I think for parents this is most important yes. news कि They should, that is why I said ना acceptance. वो जो है नहीं आता है. नहीं आधार कार्ड में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आपको जाके असेसमेंट करवाए. On the contrary, your child will do good if you take all these advantages. So SLD में 9th-10th में किसी को है तो CBSE बहुत बड़ा कंसेशन देता है. बट बिलो 9 स्कूल ये सब बिल्कुल कंसेशंस बिल्कुल हम अपने लेवल पे कर सकते हैं. मतलब स्कूल अपने लेवल पे कर सकता है. इफ़ यू शो द रिपोर्ट, इफ़ यू से दैट ये है स्टूडेंट को एंड ये हम करवा सकते, तभी स्पेशल एजुकेटर्स काम आते हैं ना. दे विल सी द रिपोर्ट, दे विल टेल द टीचर्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इसको क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं. वो IEP जो मैंने बोला था ना, उनका अलग से बनता है. दैट यू मेक द चाइल्ड डू ऑल दिस, मेक द चाइल्ड स्टडी लाइक दिस. दैट इज वाई इंडिविजुअल प्लान्स बनते हैं. उनके लेसन प्लान्स जो होते हैं ना टीचर्स के, वो एक कॉमन होता है. बट फॉर दीज स्टूडेंट्स दे मेक इंडिविजुअल प्लान्स कि एक इसकी नीड के अकॉर्डिंग उसका लेसन प्लान बनता है. सो असेसमेंट्स भी अलग होते हैं. उनका पूरा करिकुलम अलग बनता है. उनको पढ़ेंगे वो ही, बट वो उनका इंडिविजुअल प्लान के जैसे मैंने बोला ना, मे बी मोर ओरल्स, लेस राइटिंग, समथिंग लाइक दिस. एक और चीज़ है डिस्कैल्कुलिया से रिलेटेड कि जब मैथ्स नहीं आता है तो उसके 3 स्टेजेस. मी बीइंग अ साइंस एंड मैथ एजुकेटर आई हैव सीन दिस कि पेरेंट्स जब बच्चे को मैथ्स नहीं आता है तो पेरेंट्स 2-3 चीज़ें करते हैं. जैसे अगर मैथ्स नहीं आता है तो वो बहुत फोर्स करते हैं कि मैथ्स is most important thing you should know. I agree to being an educator, but I don't think it is everything. दूसरा, अगर मैथ्स नहीं आता है तो even though let's say they are diagnosed with dyscalculia, I think parents are not ready to accept that part, and they want their kid to be very excelling at maths and science. What do you have to say to parents and educators about this? I would say that मैं भी मैथ्स में बहुत वीक थी. नाउ मेरा तो कभी असेसमेंट नहीं हुआ, बट देन आई नो मुझे कहीं ना कहीं निकला होगा अगर वो हुआ होता तो. बिकॉज आई एम डेड, आई वाज वेरी टेरिबल विद मैथ्स. आई विल गिव माय एग्जांपल. सो व्हेन आई टुक माय 10th स्टैंडर्ड, वो आई वॉज अ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, राइट. सो उसमें तो कुछ ऐसा उस टाइम पे तो NEP कुछ था ही नहीं, जो है यही है पढ़ो, राइट. सो वो 10th मेरे लिए वॉज अ नाइटमेयर बिकॉज आई हैड टू क्लियर मैथ्स. माई पेरेंट्स वर डेड श्योर दैट आई एम गोइंग टू फ्लंक. मेरा मैथ्स इतना टेरिबल था, बट देन समहाउ बाय मिरेकल और व्हाटएवर यू से आई सेल्ड थ्रू. सो व्हेन आई एनकाउंटर द पेरेंट्स टुडे, मैथ्स बच्चे students are very clear. If I'll talk about adolescents, they are very clear. You ask them that what is the issue, what is happening, वो बोलते थे मैम मैथ्स नहीं होता है, we are unable to do maths. तो क्या प्रॉब्लम है? मम्मी पापा नहीं. अब 10th में मैथ्स लिया है बिकॉज अब 10th में
कोई चॉइस नहीं है Agreed. until unless you are diagnosed with it and you have a chance to change it, वो अलग चीज़ है, but otherwise तो कभी कभी तो पेरेंट्स करते भी नहीं है, असेसमेंट भी नहीं करते, नहीं करना है, you know, like Agreed. that. So वो हमें भी नहीं पता है नहीं है, but somehow the child is unable to do mathematics. तो फिर I always ask those students when they come to me that, you know, क्या करना है 11th में? मैम मैथ्स तो नहीं करना है, बट मम्मी पापा बोल रहे हैं कि साइंस तो लेना ही पड़ेगा, मैथ्स के बिना कैसे कर सकते हो? At that time, of course, I don't react to them that what is all this? That's not my work. But I always feel, you know, little bit bad for them. I would be very honest that, you know, they are unable to explain their parents कि नहीं हो रहा है, हमें मत करवाओ. तो वो कर लेते हैं, and I have seen students taking also science and then struggling badly. Badly because नहीं हो रहा है, and ultimately फिर कुछ समझदार होते हैं तो बोलते कि भाई 11th में इतना कर लिया, भाई चेंज करवा लो. Agreed. तो वो मैं मानती हूँ, चलो फिर भी बेटर है. एंड देर आर समवन हु विल नॉट, वो 12th में फिर वो गोल से लेते हैं कि भाई आपको तो फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग करना ही पड़ेगा. करो पर 12th में मार्क्स ही इतने कम आए कि वो अच्छी कॉलेजेस में यू नो दे डोंट गेट द एडमिशन, तो वो बच्चे फिर कुछ और ही कर लेते थे. आई ऑलवेज फील दैट इससे अच्छा आपने कुछ और ही दिलवाया होता है इनको, दे वुड हैव एक्सेल्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. Agreed. But I think हमारे टाइम पे ये बहुत था. हाँ. अब पेरेंट्स आर गेटिंग अवेयर एंड they are accepting all these facts कि इंजीनियरिंग नहीं करेगा. मेरा तो क्लियर था. When I cleared my 10th, I was like, I will not study maths Maths at anymore. मुझे पता था that would be a disaster for me. Agreed. I was very good with biology. Okay. So मुझे करना था biology actually. I wanted to take biology. I wanted to do zoology. Okay. But then वही था, उस टाइम पे आपको maths और बायो दोनों लेना पड़ेगा. I said मैथ्स है तो भले I'm out. I said I cannot do it. ले लिया तो zoology तो नहीं, मेरा कुछ और ही हो जाएगा उसके बाद. I said leave me alone, and then I said let me do something and which that is how you jumped to psychology. And I क्योंकि think psychology भी कहीं ना कहीं biology से connected है. agreed. So I till date love biology. I'm very fond of biology. तो मेरा वो connection कहीं ना कहीं फिर वहाँ जुड़ा. But I think what we are meant to be, Yes, destiny yes, कहीं ना yes. कहीं घुमा Yes. के ले ले ही ही आता जाती है. है. I think maths आपके लिए beneficial रहा क्योंकि आपको बिल्कुल, psychology में बिल्कुल. तो मैं वही एग्जांपल देख के I'll say ना that मैं मानती हूँ मैथ्स एक लेवल तक इम्पोर्टेंट है. Agreed. I will not say no. बट वो नहीं पढ़ोगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे. That is, I will give my example. Look, I have not done after 10th. I have become someone. At least उतना तो किया है that I know that मुझे मैथ्स की जितनी जरूरत पड़ी उतना कर लिया, उससे ज्यादा I'm fine with it. Agreed. So this is something about SLD, but there is something related with this. I think in the disorders thing, that is BPD. I think many of us don't know what BPD is, or I think we know it in a very wrong form. So Yes. can you explain us what is Yes. BPD? BPD borderline personality disorder. इसको मैं स्कूल लेवल पे एक्सप्लेन करूँ तो इट इज़ इंटेंस इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इम्पल्सिव बिहेवियर, अनस्टेबल रिलेशनशिप, जो कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज होता है आपका फियर ऑफ अबैंडनमेंट, है ना. ये इज़ टिपिकल BPD इन शॉर्ट. और क्यों आता है? आई वुड से दैट अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, डिस्टॉर्टेड या आई वुड से नेगेटिव सेल्फ इमेज, एंड उसके ऊपर हम जनरली जो हमारे डिसऑर्डर्स में ना एक चीज़ होती है जो हम बोलते हैं, ये ऑलमोस्ट सारे डिसऑर्डर्स को ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है. दैट इज़ देयर आर 3 फैक्टर. वन इज़ यू हैव इट इन जेनेटिक्स. अगर हम तो जब मैंने वर्क करना स्टार्ट किया था ना, तो द साइकियाट्रिस्ट विथ हुम आई वाज वर्किंग ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, नो, हम पूछते कि 7 पीढ़ियाँ ब्लड रिलेशन है ना, 7 पीढ़ियों में किसी को हुआ था. तो तब मैं भी ये सवाल पूछती थी कि वो जो आए उनको कैसे पता 7 पीढ़ी? नहीं, उनको पता होता है, आप पूछो. एंड दे यूज्ड टू टेल, है ना. तो अगर कोई भी डिसऑर्डर आता है ना, हम पहले पूछते हैं कि भाई किसी को आपके फैमिली में मैटरनल पैटर्नल ईदर ऑफ द साइड हुआ था, है. सो दैट इज वन फैक्टर. सेकेंड इज एनी ट्रॉमा इफ द चाइल्ड हैज फेस्ड, कुछ भी, लूजिंग अ नियर एंड डियर वन, कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो गई, बिकॉज ऑफ दैट this has happened. And third, classic chemical imbalance. Brain में कुछ chemicals होते हैं. If that balance is gone, then any one of us, we don't know after 5 minutes which chemical will go up and down, and we are also going to all the emotions yes, are juggling of all those chemicals in the brain. So BPD, let's say, how can a teacher
find out, because I think there is a very thin line yes, yes, for suspecting as well. yes, और अगर वो गलत तरीके से भी पुट आउट होता है तो आई थिंक एवरीबॉडी गेट्स इनटू दैट थॉट कि क्या ये था नहीं था या हाँ. तो हाउ कैन अ टीचर एडुकेटर और कॉमन पर्सन, let's say a parent, can find out whether they are going through or they might be going through that BPD? Okay, so for a teacher, an educator, one thing that always comes up is, as I said, intense emotions, rapid mood swings. That is one thing. Second, relationships. They cannot take rejections. They're very sensitive. Friendship for them is everything. Any relation जहाँ पे उनको थोड़ा सा attention मिलता है, and they want that exclusive relationship. अगर मेरा कोई friend है तो वो friend should only be my friend. किसी और से बात की, connect किया, किसी के best friend बन गए, they'll take it very differently. And self-harm tendencies, Okay. threatening behavior, and they actually do it maybe to take attention, to show that someone that look, because of this I'm doing all this. Again, very much negative self-worth, ये चीज़ें हैं. और अगर आप एजुकेटर्स की बात कर रहे हो कि साइंस देखें तो अगर if they are talking too much about, they don't like their body image, they are talking, as I said, self harm की भी बातें कर लेते हैं, generally that पता नहीं ये तो सब मुझे ऐसा ही करते हैं, I think I'm not that good, I'll do something, kind of a thing. ये सारे इंडिकेटर्स हमारे होते हैं फॉर इम्पल्सिव ऑल्सो. दे आर वेरी मच इम्पल्सिव इन अ वे दैट एकदम जब आ जाते हैं वो जोन में, मूड स्विंग्स की हम बात करते हैं, ये वो रेकलेस स्पेंडिंग, पैसा है तो दर दर स्पेंड कर रहे हैं, बिंज ईटिंग, किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या करूं मैं, खाए जा रहे. These all are also the signs. I think this is not just in students. Yes. बहुत सारी, जैसे आपने बोला कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं they might lead to this. And जैसे आपने बोला, I think these are some of the things जो adolescent stage में हम देखते भी हैं. And I think we can also judge ourselves कि हाँ बस ये parameters है, ये indicators हैं. तो आई थिंक वी शुड एक होता है आइडियलाइजेशन. दे डोंट टेक टाइम टू आइडियलाइज समवन, और उसी समवन ने कुछ उनको मना कर दिया ना, सीधा डिवैल्यू, नेक्स्ट डे दे विल बी द एनिमी, एकदम ड्रास्टिक. सो लेट्स से आई थिंक जैसे आपने बोला केमिकल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, तो अर्ली स्टेजेस में लेट्स से एनी टीचर और एनी पेरेंट इज सस्पेक्टिंग कि शायद इस बच्चे को बीपीडी हो सकता है, एंड जैसे आपने बोला अग्रेसिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, कंसल्ट करने से पहले व्हाट आर द स्टेप्स दे माइट टेक एट होम? यस, सो पहले तो टीचर शुड बी विजिलेंट. अगर कोई भी आपको ऐसा स्टूडेंट दिखता है जो कांस्टेंट कंप्लेन कर रहा है या कर रही है रिगार्डिंग अनेबल टू कीप फ्रेंड्स, वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स द सेल्फ, क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर रॉन्ग रीजंस, वो सारे में सबसे पहले आप देखो कहीं कोई सेल्फ हार्म तो नहीं हुआ है. मोस्टली रिस्ट एरिया. ओके, तो वो हाइड करने के लिए ना सबसे पहले वो लॉन्ग स्लीव्स पहनेंगे, दे डोंट वांट टू शो. सो वो पहले देखे. इफ़ यू सी ऑल दैट, ऑफ कोर्स यू हैव टू रिपोर्ट, कुछ करना है. बट इसमें भी यू कैन नॉट डू मच रेदर देन टॉक विद देम, सपोर्ट देम इन अ वे दैट अगर कोई आके आपको बोलता है कि सेल्फ हार्म की टेंडेंसीज दिख रही है, आई वांट टू डू समथिंग, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज टेल दैट दिस इज नॉट द करेक्ट वे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आइडियली तो फिर वो रेफर ही होंगे. बट एज एन एजुकेटर यू ऑलवेज बी विजिलेंट विद दीज केसेज इन अ वे दैट कभी एकदम से गुस्सा दिखा दिया क्लास में, अब आपको लग रहा है कि और भी स्टूडेंट्स बैठे हैं एंड द चाइल्ड इज शोइंग दैट कुछ ज़्यादा गुस्से हो रहा है, वो बिल्कुल ही कुछ ऐसे एक्शंस हो रहा है, बिहेवियर हो रहा है जो आपको लग रहा है कि भाई अभी इन दिस रनिंग क्लास दिस शुड नॉट हैपन. आप उसको कामली वो स्टूडेंट को आप ले जाइए बाहर. मे बी यू कैन सेंड सम अदर टीचर इन द क्लास टिल यू डील विद द चाइल्ड सो दैट द अदर स्टूडेंट्स डोंट कम आउट आफ्टर यू कि भाई क्या है, एंड यू टॉक टू द चाइल्ड व्हाट हैज़ हैपेंड. और कुछ ऐसा बिहेवियर जो आपको लग रहा है कि कुछ तो है बट द चाइल्ड इज स्टेबल, बैठी है, जो भी है, आप खत्म करके बाद में बात करो. बट डू टॉक, डोंट लीव देम, चलो ठीक है हो गया. आइसोलेशन कैन सी दे आर सुपर अटैच्ड. आप थोड़ा भी उनको अटेंशन दोगे ना, वो आपको अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं. बी इट देयर पेयर्स, बी इट द टीचर्स ऑल्सो, दे आर वेरी मच अटैच्ड. तभी ये केसेस जो होते हैं ना उनको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज अटैचमेंट लेवल इनका बहुत ज्यादा है. थोड़ा भी कोई इनको अटेंशन देगा, दे विल टेल लाइफ हिस्ट्री with that particular person, to that particular person, and then they'll expect that you'll always talk to them, sab suno, be with me, severe attention.
and severe attachment. I think it is more on the emotional side. Yes. And that can lead to some of the Insecurity. कहीं ना कहीं शायद कुछ हुआ है लाइफ में that Which is- they reach to this stage. Chemical imbalance है तो अलग चीज है. right. But maybe something would have happened Hmm. that they reached in a state where they are so insecure that they are scared that what fear of abandonment. Don't want to be alone. What if someone leaves me? That is why. See, idea of self-harm कहाँ से आता है? If you say taking your own life is a very different thing. Self-harm is a very different thing. Agreed. Right? वो idea कहाँ से आता है? So they किसी ना learn, किसी से सीखता है ना? It's That not is- that today I have not even seen anywhere that I have to cut my wrist, for example. मुझे idea कहाँ से आया? I don't know. मैं Yeah. पेरेंट्स को भी ये बोलता हूँ या Yes. कई दफ़ा जब हम मिलते हैं हम बातें भी करते हैं पीयर एजुकेटर्स हैं या दूसरे लोग हैं तो मैं यही कहता हूँ कि बच्चा कुछ सीख के नहीं आता है वो जो देखेगा वो सीखेगा And top of it now it has gone to that level कि ये करके वो social media पे भी डालते हैं. Exactly. To show everyone that look I'm suffering. This is the attention seeking. I think this is the Yes, invisible yes. thing which most of parents and most of people don't So see. OTT I feel that ठीक है आज की जनरेशन को ना आप मोबाइल से दूर नहीं रख सकते. Agree. I always tell the parents that don't. आपने दिया है अब आप उससे ले नहीं सकते हो. Agree. बट आपको पता करना चाहिए आपका बच्चा क्या देख रहा है. आपको पहले से एजुकेट करना चाहिए what the child should see and what not. इसी पे जैसे आपने बोला आप मोबाइल फ़ोन से इतने एक्सेसिबल हो पेरेंट्स ने दिया है उनका भी कारण है because they are somewhere else kids have Exactly. to Yes, they yes, have to yes, get connected yes. with that and everything is online now all the platforms are there tech is there क्या एज ए साइकोथेरेपिस्ट आपको क्या स्टेप्स ऐसे लगते हैं जो पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए या टीचर्स को फॉलो करने चाहिए कि बच्चों का स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट हो उससे भी ज़्यादा हाउ कैन दे मेक इट स्ट्रीमलाइन कि बच्चा यही देखे इन अ वे कि ना ही वो बच्चे को ऐसा लगे कि माय पेरेंट्स आर अगेंस्ट अस or they are or my educators are resisting or restricting me from using this thing whereas the other kids are getting that opportunity of using their phones unlimited times and whatever they can download. What can parents do? First अगर आपने कभी बच्चे को फोन नहीं दिया है वेरी गुड ठीक है आई थिंक देन ये It's क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि agreed. क्या है ना अब आपने दे दिया. Agreed. सो व्हाट इज द थिंग इज पहले से आपको बाउंड्रीज क्लियर करनी पड़ेगी है ना. रात के टाइम फोन मेरे पास Right. यू विल नॉट कीप. सेकंड टाइमलाइन इट. स्टडी दिस मच यू विल गेट 1 hour फॉर एग्जांपल. दिस इज ऑल एग्जांपल दैट इज अप टू द पेरेंट्स. आप कितना देना चाहते हो. 1 hour एंड 1 hour के बाद फोन यहाँ आ जाना चाहिए. वो खींचातानी नहीं होनी चाहिए कि Ground फोन दे. rules. ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू Give it. इज्जत से आप दे दो फोन है ना. और उसको टाइमलाइन करने के लिए भी आपको आप वैरायटी ऑफ थिंग्स यूज़ कर सकते हो. जैसे कभी आपको लगता है कि बच्चे को आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो हम थेरेपी में जनरली यूज़ करते हैं द रिवॉर्ड्स. वी गिव द रिवॉर्ड सिस्टम. तो आपने इतना पढ़ लिया तो आप 1 घंटा मोबाइल देखते हो ना उसके ऊपर हम 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको दे देंगे. राइट. बट देन 15 मिनट्स के बाद यू गिव इट बैक. उनको भी मोटिवेशन होगा कि ये करना है ना तो देन आई हैव टू स्टडी. Always use these techniques. This is how it helps them. क्योंकि आपने पहले से फोन दे दिया. कुछ भी गैजेट दे दिया. चलो फोन दे दिया आपने, लैपटॉप दे दिया आपने, आईपैड दिया या वॉट एवर टैबलेट्स दे दिया आपने. उनको पहले से आप बताओ कि ये इतने से इतने टाइम तक है और फिर आप ले लो. अगर वो day 1 से हुआ ना तो they'll never argue with you that why you are taking it away from them. आपने अगर दे दिया और बोला लो बेटा ये तुम्हारा. फिर आपने 24 hours उसको दे दिया है तो 24 hours में आपको नहीं पता क्या क्योंकि आजकल तो आई थिंक सिंस यू आर ऑल्सो रनिंग एन इंस्टीट्यूट यू विल आई डोंट नो वेदर यू विल रिलेट बट आई हैव सीन विद दैट ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं. यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं. Right. अब वो पेरेंट को जब हम बोलते हैं तो बोल रहे कि मैडम वो तो ऐसे बोल रहे कि यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स देख रहे हैं. आई सेड आपने देखा वो क्या देख रहे हैं. मतलब आई ऑलवेज से दैट हैव यू एवर चेक्ड. आई एम नॉट सेइंग दे विल नॉट बी डूइंग बट मे बी वो एक लेक्चर देख के कुछ और ही देख रहे हैं. Agreed. सो वो फोन क्यों रख रहे हैं. जब मैं पूछती हूँ कि रात को आप फोन क्यों देते हो इनको बोले मैम वो रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं और वो बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे देयर इज सर्टेन कोई XYZ लेक्चर इज गोइंग ऑन आई वांट टू सी दैट तो फिर हम दे देते हैं. I said then but that you should be clear that after that lecture what all things they are doing. आप देख लो YouTube, Insta, Snapchat. कितना स्क्रीन टाइम है. Very much on social media. So I think the first thing is अगर नहीं दिया है बच्चे को तो it's a win-win case. Very much. I would say till at least 10th तक तो नहीं देना चाहिए. 11th फिर भी your choice. Right. I would be good आप 12th के बाद ही दो.
that would be the best. Yes, it's yes, the best thing. दूसरा जो my mother used to do, and I'll put this forward, that I got my phone very late in I think when I was in 10th or 11th, और तब तक my phone मेरी मम्मी का जो phone था, that is what was the only source of getting notes. Yes. That was the only source of getting Yes. PPTs and all those things. उससे ज़्यादा मुझे जो लगता है, तब जो era था ना, जब हम handwritten notes बनाते थे, Yes, yes. I think the best thing was making it handwritten. भले ही कितने iPads पे कितने भी strokes नए आ जाए, कितने भी colors आ जाए, but I think switching from the manual thing of handwritten to iPad notes and other notes, I think kids have become more, easy going on that thing. Very much. मैंने तो as I teach science, मैंने देखा है बच्चों के diagrams बनाने इतने tough हो गए हैं. Reason being because they can access those diagram on iPads through Now different it's apps. another level. अब तो AI आ चुका अब है. AI आ चुका है. आप कुछ भी चैट जीपीटी पे डाल दो, टाइप करो आपको और बना बनाया डायग्राम मिल बना जाता के, है. और Yes. जब उनको बनाना आता है, जैसे हमारे टाइम पे हार्ट डायग्राम होता था, न्यूरॉन होता था, ब्रेन होता Yes, था, yes. अब इनको वही बनाने देखो तो सर वी हैव मेड इट वेयर ऑन आईपैड. यू हैव नॉट मेड इट डियर, यू हैव टेकन इट फ्रॉम सम अदर साइड, और फिर वो बनाना Exactly. इतना टफ हो जाता था. आई थिंक उससे हमारा जो सेंसरी जो है वो भी बहुत डिक्रीज हुआ है. हाँ. राइट. So आपको क्या लगता है when you say ADHD, when you say motor movements, हम लोग तो लिटरली करवाते हैं. जब किसी को होता है ना वो ग्रिप का हाँ. प्रॉब्लम, ये वो तो हम तो बोलते हैं बीडिंग करो. आप Right. एक एक थ्रेड जैसा कुछ ले लो, बीड्स डालो, आपकी मोटर मूवमेंट्स बढ़ती है. एग्जैक्टली. वो चीजें अब रही नहीं है. हम तो ऐसा खेलते भी थे ना, Agreed. ब्लॉक्स थे, ये था वो था. चलो वो तो अभी भी छोटे बच्चों को देते हैं, बट वो हमारे प्लेस वर ऑलवेज आउटडोर. अग्रीड. अभी तो सब कुछ इंडोर है. I think everything has become easy as well as I think उसके एक्सेसिबल negative. हुआ है तो ड्रॉबैक्स भी है. हम्म. प्लस माइनस सबके होते हैं. आप तो फिर भी वो जोन में पड़े थे ना. आपको मेरा फोन तो व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, वो भी नॉट माइन, इट वाज माय फादर्स. और तब अगर लेना होता था ना तो पापा 4 सवाल पूछते थे कि क्यों चाहिए. टिल आई डिड नॉट स्टार्ट वर्किंग, अर्निंग, आई थिंक माय फर्स्ट फोन आई टुक ऑफ माय ओन अर्निंग. तो हम तो वो जमाने के. बट देन आई वुड ऑलवेज से दैट ठीक है, वी शुड इवॉल्व विद एज द जनरेशन गोज. बट देन उस चक्कर में हमें पेरेंट्स को एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, दैट डोंट ओवर गिव योर चाइल्ड. Agree. है ना. आप दो, आपका ही बच्चा है, यू पैम्पर योर चाइल्ड, यू गिव व्हाटएवर यू वांट टू गिव. उसको नहीं दोगे तो किसको दोगे आप. बट देन यू शुड ऑलवेज लर्न दैट देयर इज वन फाइन लाइन बिटवीन पैम्परिंग एंड ओवर पैम्परिंग. वो अगर क्रॉस हो गई तो इट इज टफ टू कम टफ बैक. फॉर देम. हाँ. देखो वी पीपल, जैसे मेरे पास अगर कोई आएगा, मैं तो जितना वर्क करना है आई विल वर्क ऑन दैट चाइल्ड, आई विल वर्क ऑन द पेरेंट्स, है ना. बट अल्टीमेटली घर पे आपको रहना है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आप कहाँ खींच के जा रहे हो, क्योंकि घर के मैटर में तो वो घर पे ही हो सकता है. हम यहाँ पे बीइंग इन द स्कूल, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल, टॉकिंग अबाउट मे बी द कोचिंग्स और द ट्यूशंस एक्सेट्रा, वहाँ पे तो वो जब तक वहाँ है बच्चा वहीं, उसके बाद तो फिर अंडर योर केयर. This is what I think my mom and dad used to do, and even my दादी is doing this, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. फ़ोन का एक्सेस कम करने से ज़्यादा दूसरी चीज़ों का एक्सेस जब वो ज़्यादा देखेगा ना, तो आई थिंक पेरेंट्स व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू स्नैच देयर फोन, दे ट्राई टू टेक अवे देयर फोन, बट दे डू नॉट फाइंड अ रिप्लेसमेंट. माय मदर एंड माय फादर यूज्ड टू डू दिस थिंग. माय फादर एंड माय ग्रैंड मॉम एक्चुअली यूज्ड टू डू दिस थिंग कि वो बुक्स पढ़ते थे. तो आज मुझे थोड़ा बुक्स के प्रति वो थोड़ा है. उसका रीज़न आई हैव ऑलवेज सीन माय डैड रीडिंग बुक्स. माय दादी रीड्स a book in a day. That's a 100-page book and she reads it in one day. That's great. And I have learned कि अगर आप छीन रहे हो तो कुछ replacement तो give them something else to play with, give something else to do with. क्योंकि आप फ़ोन ले रहे हो तो उसे कुछ चाहिए भी तो. दूसरा, जैसे मैंने बोला कि बच्चे देख के सीखते हैं, तो आई थिंक आपने वो इंस्टिल ही नहीं किया कि वो बच्चा बुक खोल के पढ़े, एंड यू स्टिल वांट देम टू. दिस इज़ व्हाट आई थिंक मिरर थिंग कम्स वेयर कि कम्स इन प्लेस कि जब बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा. तो अगर आप बच्चे को एज एन एजुकेटर ऑल्सो, आई थिंक आई हैव टोल्ड माई सेल्फ एंड अदर एजुकेटर्स इन माई इंस्टीट्यूट एज वेल कि आप अगर बच्चों को बोल रहे हो कि पढ़ो, जब तक आप उस बच्चे के सामने पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल आपने बुक नहीं खोली है, yes, yes. आप फोन में ऐसे स्क्रॉल करते हुए बोल रहे हो बेटा ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो how will they are looking something else, they are listening something else, and how will they get both of the things together? Today's kids are very smart. If you'll tell them don't use the phone,
they'll come and ask, आप तो करते हो, Exactly. है ना? What answer you'll give? You cannot say नहीं. फिर आप उसको डांट ढपक के बिठा दोगे, that's it. But then child will not stop questioning you अभी that you शायद are still चुप हो doing. जाएगा, Yes. but I think Yes, yes, eventually. yes. And when you say, of course, modeling, we call it modeling. वो बचपन से सीखते हैं, है ना? Agreed. Pre-primary. Have you seen a pre-primary kid at all? वो यहाँ से स्कूल से जब घर जाते हैं ना, literally they'll enact their teacher. Take out your books, take out your pencil, write this. बिल्कुल मॉडलिंग करते हैं. What the teacher says in the class, they'll repeat that at home. That is how they learn. That Same is how with the everybody parents. learns, I think. तो वो तो है. Your point is very correct that first they should streamline their routine, their usage of mobile. क्योंकि I have seen the parents, you know, वो बैठे हैं. I have seen maybe family gatherings आप ले लो, कोई भी family gatherings, वो बैठे हैं, बच्चे फोन पे है, माँ बाप भी कोई फोन पे है, मतलब गैदरिंग नहीं है ये, आप सारे फोन पे ही बैठे हो वहाँ पे. So they learn from parents, and when you say that give the replacement, give them the outdoor activities. Agreed. Sports. I mean, as I said, हम लोग जब स्कूल से आते थे, थोड़ा पढ़ाई करके हम शाम के टाइम बाहर ही होते थे, खेल रहे थे with all our friends etc. I remember my childhood. हम खेलते रहते थे. Now you see they don't go out much. Parents नहीं भेजते. नहीं नीचे नहीं जाने का, नहीं ये नहीं करने का, कहाँ जा रहे हो बताओ. Give them that. See, they are full of energy. Right. उसको यूज करो. अब फोन नहीं ले, अब फोन दे दोगे तो एनर्जी वहीं चली जाएगी. Right. अब फोन लेके उनको कहीं डालो. योर चाइल्ड माइट लाइक टू प्रोबेबली हैव गुड म्यूजिक, सीखना चाहते हैं, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है. देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट, सो मेनी कोचिंग सेंटर्स जो ये करवा रहे हैं. आप एनरोल करो. फिर वहाँ पे भी वही आ जाते थे, मैम वहाँ भी फोन तो देना पड़ेगा ना, बच्चा कहाँ है. आई ऑलवेज रिमेम्बर एट दैट टाइम भी हम तो जाते थे, हमारे पास तो फोन भी नहीं होता था. Agreed. जाके आ जाते थे, पता ही नहीं चलता था. So this time it is, the things have changed. Definitely. But this is needed. You know, आप आपके बच्चे को थोड़ा बाहर निकालो, सोशल बनाओ. Exactly. You are not making your child, जितना आप फोन पे दोगे उसको टाइम, बच्चा सोशल वही नहीं बन सीखेगा पाएंगे. जो ऑनलाइन सिखाना चाहता है, वो नहीं जो आप सिखाना चाहते हो, जो आप जो एक ह्यूमन कनेक्ट होता है. Agreed. That is missing. That is missing. वो खाली फ्रेंड्स तक है. I know adolescence में वो थोड़ा distance with the parents आता है, with the relatives आता है, but that doesn't mean that the child stops coming. With this there is one more thing which I have seen, जिससे ऑनलाइन का इफेक्ट इससे ज़्यादा हुआ है. That is something called as persistent sadness. I think we put it out in a very sophisticated way. I think you would be the correct person to put. What do we say it in a layman language, ma'am? Can you elaborate? Yes, persistent sadness, as you said, very subtly put. इसको मैं अगर मेरे टर्मिनोलॉजी में पूरा चेंज करूँ तो ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन. Right? A persistent sadness, what is it? Any person, right, say an adolescent who is sadness for say weeks, months, few of them for years, with that they are isolated, they don't want to talk to anyone, that is depression. In your way, persistent sadness. और इसके जैसा एक और भी होता है persistent, जो adolescence में बहुत है. और अगर हम adolescence की बात करें तो that fear is more with exams. एग्जाम आते ही shivering, tremors, panic attacks, to that extent that बाहर निकालो, एग्जाम रूम से नहीं बैठा जा रहा है, नहीं हो रहा है, मैम क्या करे. Even the physiological part plays. इसमें let's say a kid is going through depression, तो एक एडुकेटर को एक क्लास में क्या साइंस है जो पता कर सकती है कि they might be going through persistent sadness? As I said, the child is isolated, not talking. जो usual उसके friends हुआ करते थे उनसे भी बात नहीं कर रहे. Crying spells. They'll cry, and when you ask why, there is no reason. बस आ गया रोना. Mood will be down. अब पूछोगे कभी के how are you feeling? मन कैसा है आपका? They'll always say or dull, not happy. Thoughts are negative. Negative मतलब they feel hopeless. They feel there is nothing to do. There is no interest in anything. They're withdrawn. वही बच्चा अगर घर पे भी होगा ना तो मे बी एक कमरे में बंद. Same, not meeting anyone, not talking. Appetite बढ़ गया या बिल्कुल चला गया. Weight gain हो गया या lose. Maybe anger also in many cases. Right. Irritability, what we say, नहीं होती है. Maybe शायद लेट नींद आती है या बीच बीच में उठ जाते हैं
or total insomnia in our words, and that is why they might sleep in the ये थोड़ी Yes. बहुत जो आती है फिर वो ड्राउजी फील करेंगे, Hmm. सो जाएंगे वहाँ पे. Right. So these are all the signs where, and many a times when you say negative thoughts, they also will have, they might say in a different way, or they might say on the face that, you know, life is not worth living. So I think these are the initial Yes. signs which an educator or a parent as well can Yes. find out. Yes. See, when I say depression, it's more like isolation जब होता है, withdrawn जब बच्चा है, Hmm. तो कुछ कर ही नहीं रहा है. Hmm. The child is not doing anything, not talking to anyone, socially bilkul down, even with the parents. So how can you expect the child to study? And even if you tell the child to study, the child will There's- open the book, might be reading also, but how nothing much? fruitful. Exactly. So एक पेरेंट को या एक एजुकेटर को क्या करना चाहिए अगर बच्चा चलो परसिस्टेंट सैडनेस में नहीं सैड है या थोड़ा डिप्रेस फील कर व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स कैन और स्ट्रेटजीज दे कैन यू नो यूटिलाइज before they consult to a psychologist or a psychotherapist? Talk. See, this is a disorder where whatever you'll see, you need to just talk to that person. Communicate What with is them. going on? Why you like this? अगर विड्रॉन है तो शायद नहीं बोलेंगे, तो उसके लिए तो आपको सीधा फिर बताना ही पड़ेगा कि भाई समथिंग इज ऑफ. जो विड्रॉन नहीं है तो वो शायद बता देंगे कि यू नो मेरे साथ ये हो रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग एनीथिंग, डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, आई जस्ट फील लाइक क्राइंग, I don't like my life. So this is what the educators can do. They should talk, find out, figure out what is happening. Communicate without judgments. Yes. So I have encountered many adolescents coming and saying, parents कभी आके बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, घर पे रोती है, तो जब पूछो क्यों रोते हो बेटा, I also don't know, but वो एकदम से रोना आ जाता है. Another sign. So educators, the best they can do is to talk to them, because this is a disorder which needs some help from the external source. So वो अपने लेवल पे वो चाइल्ड को कंफर्टेबल कर सकते हैं, वो सपोर्ट दे सकते हैं, बात कर सकते हैं. वी आर देयर, जस्ट लेट देम नो दैट यू आर देयर. नो मैटर व्हाट इट इज, दे कैन कम टू यू, दे कैन टॉक टू यू, गिव देम दैट विंडो. है ना, अगर कोई क्लास टीचर है फॉर एग्जाम्पल, मैनी अ टाइम्स क्लास टीचर्स आर कनेक्टेड वेरी वेल विद द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स. सो यू गिव देम दैट ब्रांच दैट यू नो इफ यू फील यू वांट टू टॉक टू समवन, you can talk to काउंसलर तो है ही है आपके स्कूल में शायद, बट अगर I think before counselor a student so always एक बार वो tries. बात करेंगे तो टीचर को भी लगे कि नहीं, this thing whatever is happening, this girl, this boy needs a counselor. So फिर वो अलग से बता देते हैं कुछ है. Let's say any student is suspected going through depression, whom can an educator connect with or a parent could? So if we are in school, then I think majority of the school now keeps a counselor. So first thing is you have to connect with the counselor. Of course you have to inform the parents also that you are seeing the signs, that ये हम देख रहे हैं आपके बच्चे में. Connect with the counselor, and if you are not in the school, parent ने note किया है that कुछ गड़बड़ है, तो you can consult either a psychologist or a psychiatrist, either of the one. Psychologist के पास जाएंगे तो psychologist देखेंगे कि क्या है symptoms, to what extent they are there. फिर उनको लगेगा कि नहीं ये भी psychiatrist के पास भेजना पड़ेगा, the person might need medicines, then वो भी वहाँ फिर गाइड कर देंगे. काउंसलर भी सेम, उनको लगता है कि भाई मेरे लेवल पे अगर मैनेजेबल है तो हम कर लेंगे, नहीं है तो हमें इसको रेफर करना पड़ेगा बाहर, तो वो भी बाहर रेफर टू अ साइकाइट्रिस्ट probably they do. Yes, medicines जहाँ तक required है वहाँ पे psychiatrist चाहिए होंगे आपको, because they are the one who gives. I think at a primary stage, all they need is someone who can talk to, who they can talk to, who I think will listen without judgments. And I think at a stage they'll listen without replying. There should be a good listener there rather than a good speaker. I have seen students like that who comes and says, you know, कभी भी practice पे भी आ जाए तो बोलते हैं, बताते हैं पूरा, मम्मी ऐसे, पापा ऐसे, XYZ. तो जब हम पूछते हैं ना, what do you want? You want us to communicate with the parent? I want someone who listen to me. मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कोई चाहिए जिसके आगे मैं आके बातें कर लूँ, सब कुछ बता दूँ. I'll feel okay, because they don't want to tell their parents के क्या सोच रहे हैं वो, है ना, और वो हम बता देते. See, I'll just clear that thing also over here, that अगर कभी भी in school level या आप इंस्टीट्यूट में हो, आपके इंस्टीट्यूट लेवल पे कोई भी बच्चा आता है who says that you know the life is not worth living, red flags, हम इसमें BPD we can include over here in that way, self harm, always inform the parent. वो minors है, they are not adults, है ना, they are minors.
always inform the parent. आप उसको कहीं ना कहीं document करिए that we have informed the parent that the child is showing these signs. Child might say that, don't tell my parents. But we as responsible people, we have to. Because हम adults भी जब आते हैं ना हमारे पास, for example, if the adults come to me, मेरे clinic पे आते हैं, कभी कोई मुझे थेरेपी देनी है, कभी कोई टेंडेंसी है डिप्रेशन में, एंड दे से दैट आई हैव सुसाइडल टेंडेंसीज, हम अंडरटेकिंग उनका भी लेते हैं, एक डिक्लेरेशन उनका भी लेते हैं दैट आई एम अवेयर अबाउट ऑल दिस. राइट, है ना? आई थिंक इट इज टू वेज. अगर पेरेंट्स को भी दिखता है तो पेरेंट्स को भी एज सून एज पॉसिबल किसी से कंसल्ट करना चाहिए. बिल्कुल. और अगर क्योंकि देखिए वो तो मना कर देंगे आपको, क्योंकि उनको नहीं बताना उनके पेरेंट्स को, बट आपको पता होना चाहिए कि कल को कुछ हुआ, then you as an institute and any school or anywhere where the kids are there, any institute like that will be fixed. Agreed. that आपको पता था, आपने नहीं बताया. तो बच्चे को भी आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं कि listen, okay, I am there to listen to you. The issue is sensitive. Right. I need to involve the parents, but उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके आप बताइए. Agreed. The child will agree. Yes. I think it is very much important Yes. at your stage, at your Yes. position, कि अगर नहीं पता है तो फिर जैसे आपने बोला मैम, स्कूल में या इंस्टीट्यूशंस में, इज देयर एनी वे बिफोर दे एनरोल, लेट्स से बिफोर दे टेक एडमिशंस, आर देयर एनी टेस्ट, बेसिक टेस्ट? क्योंकि बहुत सारे स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं, आई थिंक वो एकेडमिक पे ध्यान देते हैं बट ऐसी चीज़ों पे नहीं ध्यान देते. तो क्या ऐसा इंक्लूजन हो सकता है कि एंट्रेंस टेस्ट में छोटा सा कोई ऐसा असेसमेंट हो गया where they can find out whether they have SLD or they might this dyslexia, dyscalculia? हो सकता है, पर नॉट प्रॉपर वो असेसमेंट टूल, बट कुछ हम ऐसा बना के दे सकते हैं जिससे एटलीस्ट हमें उनका एकेडमिक एज पता चले. देयर आर टेस्ट्स, मतलब चाहो तो दे सकते हैं. एंड व्हाट डू यू थिंक इज एन एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिव? क्या करेंगे तो इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा या नहीं रहेगा फॉर स्कूल्स एंड मतलब इंस्टीट्यूशंस? करना चाहिए ताकि स्कूल शुड नो, है ना, दैट दिस चाइल्ड हैज दिस इश्यू, बिकॉज मैनी अ टाइम्स पेरेंट्स छुपा देते हैं. तो जब पता चलता है तो पेरेंट्स को पूछते हैं ना, तो वो बताते हैं कि हाँ हमने ऐसा कोई टेस्ट तो पहले करवाया था और उसको निकला था. दे हाइड. सी, आई डोंट ब्लेम द पेरेंट्स ऑल्सो. उनको लगता है कि फिर अगर हमने बता दिया तो हमें कैटेगराइज कर देंगे कहीं पर, ठीक है. बट हमारे लेवल पे श्योर होने के लिए वी शुड, आई मीन इफ पॉसिबल वी शुड, आई थिंक एनी स्कूल शुड, एनी इंस्टीट्यूट शुड, in that way. Yes. तो आई थिंक ये स्कूल और इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है yes. कि छुपाने से ज़्यादा अगर आपने बताया होता या हमें जान तो डे वन से उसी तरह से we will have worked in that stage कि उस बच्चे को जो चाहिए, जैसा चाहिए वो हम put we would have forward provided. Yes, we would have provided from the beginning. Academic की जहाँ तक बात है, I would say that the student should know. बड़े अगर हो जाते हैं ना, हम अगर 9th onwards बात करते हैं, students generally know where I am lacking. Be very vocal in telling your educator that you need help, right? You need help. Many times they don't communicate. Agreed. है ना? 100%. मुझे कोई ये सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है, अब चलो फिजिक्स ले लो, नहीं समझ आ रहा है, they'll come and tell. When we ask that your teacher knows, तो क्यों नहीं बता रहे? They assume. उनके पास टाइम नहीं होगा. I said no, you go and talk. You never know. You'll get time. ये I think yes. बहुत बड़ा इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को ये डर रहता है कि टीचर क्या सोचेगा, या टीचर बिजी होगा, या टीचर उतना टाइम डेडिकेट नहीं करेगा, या उनको ऐसा लगेगा इतना बेसिक लेवल से नहीं आता है. सो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, इफ़ यू दिस इज़ वन कोट विच माई टीचर used to tell me कि if you ask a question you're dumb for 1 minute, if you don't ask a question you're dumb for your whole life. हाँ, उनको डर लग जाता है कि भाई गलत हो गए तो I said it's fine, who is perfect? right? कौन गिर बिना साइकिल चलाना सीखा है? Exactly. I think that is where it should start from, कि अगर आपने कुछ सीखा है तो ऐसा तो है नहीं कि हर दफ़ा वो तीर निशाने पे ही लगा है. You have failed many times, you have failed attempts, but eventually you might succeed or you might learn something from that experience. I think that is where. And last very prominent thing, important thing, have some me time. Which आज के students particularly, एक बार जो वो बोर्ड में आ जाता है, आजकल तो it's not limited to board also. I see very young students also full day studying. I say that what you do? Tuition timings भी आप देखो कितने ज़्यादा हो गए हैं. I think they don't get time to meet themselves. You see their schedule, they go to school, then they go home, they have their lunch, whatever. And immediately they have to rush. The एक आध घंटे में they are out. Right.
मैंने भी मैथ्स में ट्यूशन लिए थे, एज आई सेड माय मैथ्स वाज पैथेटिक, Right. मेरा 1 घंटे का होता था. सो व्हेन आई सी देम हाँ. एंड आई आस्क दैट कितने घंटे बेटा ट्यूशन में जाते हो? मैम 3-4 घंटे. एंड आई एम लाइक व्हाट यू डू ओवर देयर? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे डू. नहीं मैम वो तो 1-2 घंटे में ना टीचर पढ़ा लेते हैं, फिर हम बैठ के स्कूल का Practice. काम करते हैं. आई हाँ, सेड तो उसमें- दैट यू कैन डू एट होम. नहीं नहीं हम वहीं पर करते हैं. एंड फिर घर आके कुछ नहीं, घर आते आते 8 बज जाते हैं, फिर फटाफट खाना खाते हैं, फिर होमवर्क करते हैं. And then- आई सेड what are you doing for yourself? Nothing. Have some me time, do something productive, do something that you like. अब screen time की बात है, for that half an hour, 1 hour, put that phone away. जो आपको अच्छा लगता है करो. You like drawing, do drawing. You want to go down and play, go and play. Agreed. But that gadget should not be with you. And refresh yourself. एक stress जो हम बोलते रहते हैं ना, stress, तो कैसे करोगे खुद को de-stress? Agreed, This is the way you have to. I think I use that time to Yes. brainstorm. तो मेरा हर वीक में हर दिन तो होता ही है. मैं बच्चों को भी बोलता हूँ ये कि आईने में बात करो, बहुत सारी नई चीजें जानने को Yes, मिलेंगी. talk to self. एंड Journaling. जर्नलिंग इज इम्पोर्टेंट. Yes. डायरी राइटिंग, Yes. ये आई थिंक मैंने बच्चों को देखा है उनके इंग्लिश के करिकुलम में. एन फ्रैंक करके होती थी. मेरे टाइम पे एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ एन हाँ, फ्रैंक, yes, yes, इफ यू yes, रिमेम्बर, राइट. yes. मेरा इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग था पहले से. जैसा आपका मैथ्स में था, मेरा इंग्लिश कभी उतना पाला नहीं पड़ा. अच्छा, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई cannot, because Anne Frank उस टाइम पे उसका literature और वो language vocabulary was very Yes. prominent. Yes. But what I learned from that was कि मैंने कभी ये डायरी राइटिंग सीखी ही नहीं, क्योंकि there are some things you cannot say to yourself, you cannot say to anybody else, but you can jot it down, you can write in a diary. Journaling, diary writing, ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है कि, और ये मैंने बहुत बच्चों को बोला है कि if I ask them, let's say, do you know about Ratan Tata, do you know about APJ Abdul Kalam, I think they can speak for hours. And if I ask them, can you tell something about yourself? खत्म. Yes. I think that the Yes. first line is, my name is this, my father does मैं तो this, मैं ये बोलती हूँ school मुझे में. 11th-12th में हो ना, मुझे first standard वाला मत दो. Exactly. Keep And I like think first that script goes on Yes. till I don't know, ages and ages, कि वही Yes. line बोलते हैं. Sometimes, to make it a little more twisting, I say, don't introduce yourself Yes. with facts. Tell me something that I don't know. So that is where they fumble. And I'm like कि एक बंदा जिससे आप रोज मिल रहे हो, उसी के बारे में आपको नहीं पता है, और वो जिनसे आप मिले ही नहीं हो, उनसे आप इन्फ्लुएंस हुए जा रहे हैं. You don't know what is there inside you, and you're trying to find that goal outside. They have stopped spending time with their own selves. इसीलिए me time, journaling, again I was coming to that, very important. It is very much important. आपके दिन में क्या हुआ आप लिखो, आप क्या सोच रहे हो आप लिखो. I mean, and I have seen students write so beautiful poems लिखते हैं, Agreed. articles लिखते हैं. I always tell, why don't you publish? अरे मैम कहाँ जाए? अरे I said, And there are आप तो platforms. स्कूल में, exactly, हाँ. स्कूल में वगैरह तो you Newsletters have, होते हैं. हाँ. अब हर एक स्कूल का अपना अपना कुछ होता है. Agreed. न्यूज़ लेटर ले लो, आप Agreed. कुछ ले लो जहाँ पे they can publish. Agreed. So we should encourage them, और स्टूडेंट्स को यही कहना है कि ये चीज़ें करो. Hmm. Journaling has become very important these days. I Right. think we also as therapists, we ponder a lot on that. हमने भी नहीं किया, as you said ना, I never did in my life. मेरी एक डायरी नहीं मिलेगी जहाँ कुछ लिखा हो मैंने. But अब जब मैं देखती हूँ, as the things have improved, the things have changed, we are developing in a different way, तो वो सब दिख रहा है कि journaling is helping the students. Agreed. मेरे में तो बहुत ज़्यादा. एन फ्रैंक के बाद आई स्टार्टेड राइटिंग. उतना ऑफन नहीं, बट ओकेजनली मैं लिखता था. एंड टुडे आई कैरी 3 डायरीज, राइट. तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, स्पेशली इट इज लाइक, सर आप तो लड़के हो, 3 डायरियाँ क्यों रखते हो? मैंने कहा मेरे इमोशंस नहीं होते क्या? आई हैव वो टू एक और पॉइंट इट myth डाउन. है, एक और myth है that the कि- boys should not cry, boys should not show have emotions. emotions. मैंने Not कहा at all. कुछ भी है, अगर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ तो I'll write it down. Eventually I'll remember it. I might refresh it someday. और कुछ नहीं होगा तो एक अनुभव का एक किताब होगा जो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को भी मिलेगा, चल तो के, yes, और yes. कुछ नहीं होगा तो I'll take it to grave. That's fine. Exactly, that's fine. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे आपने बहुत बोला, ज़्यादा. जर्नलिंग है, और ये सारी चीज़ों पे पेरेंट्स और आई थिंक एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ध्यान नहीं देता है. दे आर ओनली लुकिंग एट साइंस, दे आर ओनली लुकिंग एट मैथ्स, इंग्लिश, SST, हिंदी, गुजराती. दे आर नॉट लुकिंग एट कम्युनिकेशन, Exactly. integrity, That is why bond, discipline, talk. यही मैंने बोला etiquettes. था. और आई थिंक ये there is one concept of micro schooling as well, which is developing a lot, and I am very fond of that concept. कि वहाँ बच्चों
को पढ़ा रहे हो ऐसे कि बच्चे दे ग्रो एट देयर पेस, Yes. they learn from different Yes. people. I think Yes. that is the most amazing way of teaching Yes. and not standardizing the education system. हाँ, वो एक हो गया है, हाँ। मतलब अब पेरेंट्स का भी वो हो गया है, पढ़ो 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 पढ़ो. हाँ, आई फील लाइक ठीक है, पढ़ेगा बच्चा, agreed. बन जाएगा कुछ. आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा है कि बच्चा नहीं बनेगा. यू हैव सो मेनी फील्ड्स अवेलेबल. Agreed. कुछ तो कर ही लेगा बच्चा. 100%. आई हैव ऑलवेज सीन कुछ तो कर ही लेगा. आप कितना भी बोलो, सी पेरेंट्स दे आर फॉरगेटिंग वन थिंग, दैट पढ़ाई के चक्कर में ना अब उसके प्रेशियस इयर्स जो है जहाँ पे वो ग्रो करते हैं. Yeah, flourish करते हैं, you're hindering that thing 100%. This is what I say at my institute as well when parents come to me, and I think this is offending them a lot, but I still It say will this offend. It कि will offend. और वो बच्चे बोलते थे कि सर, पेरेंट्स भी बोलते हैं और बच्चे भी बोलते हैं कि सर आप तो साइंस मैथ्स में अच्छे हो इसलिए तो आप बोल रहे हो. मैंने कहा अगर मेरा बेटा हुआ या बेटी हुई, I'll happily make him Sachin Tendulkar, a cricketer, a dancer, or an actor, rather than becoming an engineer, lawyer, if Yes. he's interested. क्योंकि आई थिंक वो सचिन तेंदुलकर है, धोनी है, दे आर बेस्ट एट व्हाट दे आर डूइंग, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. आप जिस चीज़ में बेस्ट है वो करिए, बाकी सब इवेंचुअली हो हो जाएगा. And एवरीथिंग see, बच्चे ह्यूमन बीइंग्स है, छोटे Agree. हैं. हम बड़े भी एक लेवल से ऊपर लोड नहीं ले पाते. आप उनको Exactly. इतना मतलब कंधे पे डाल दिया है उनके. और ये Think रियलाइजेशन about नहीं हो that. रही. मैं Yes. पेरेंट्स को जो बोलता हूँ ना तो बोलते हैं इतना. मैंने कहा मैम 12 घंटे मैं काम नहीं, हाँ. कॉर्पोरेट में 8-9 घंटे होता है. Yes. और बच्चा अगर आप देखो तो 6 बजे से 6:30 बजे जागता है, स्कूल से 2 बजे आता है, 3-4 बजे तक क्लासेस होते हैं, दे कम बैक एट 6. That's a 12-hour thing. You're Yes. expecting that from a 10-year, 12-year नींद नहीं kid. पूरी. You'll be surprised they don't sleep. They don't sleep. क्यों? पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है तो रात को जाग के करना पड़ता है. वे सो सॉरी फॉर देम. एज अ साइकोथेरेपिस्ट एक चीज़ है, क्या ये प्रेशर भी उनके न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट का कारण बनता है या नहीं बनता? ऑफ कोर्स, जब मैंने एक रीजन दिया था ना, वन वाज दैट समथिंग हैपेंड एंड दे बिकेम लाइक दिस. वही होता है. इफ यू प्रेशराइज द चाइल्ड टू मच, कुछ नहीं करने देंगे. आप पढ़ो 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 बेटा, तुझे तो यही बनने का है. तुम तो डॉक्टर ही बनोगे, तुम तो इंजीनियर ही बनोगे, तुम तो सीए ही करोगे. तो बच्चा बोल रहे पर मुझे तो बिजनेस करना है. नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं होता जो है इसमें. तो बच्चा अब सोच रहा है कि यार मेरे तो पेरेंट्स अग्री नहीं करेंगे. They have confined the opportunities. हाँ, तो मैं सीए तो मतलब मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, मुझे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए मुझे इतना स्कोर करना पड़ेगा. तो इतने स्कोर करने के चक्कर में Get इतने drained out and get exhausted 100%. तो जितना वो बच्चा वो 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस भी स्कोर करते हो ना, वो कम का हो जाएगा बिकॉज उनका फोकस कहीं और चला गया है. मुझे 95 लाना है, मुझे वो XYZ कॉलेज में एडमिशन लेना है. There's one thing I wanted you to, which is one book which you suggest everybody should read, either they are parents or young educators related to these things. I have like series of books that I used to read a lot, but there is this one book, if I am recalling the name properly, 7 Habits. Forgot the name of the author. I have read long back. Very efficient book. Highly successful people. You know everything needed to do to become someone and how the habit should be created, how it should be used. I think the parents should read that first. Agreed. And then the students. 7 Habits of Highly Effective People. Highly effective Yes, people. I now remember it. Yes, and Yes. there's one more for teenagers as well, the 7 Habits of Yes. Highly Effective Teenagers. Teenagers. Yes. Definitely read. Very good book. I've read that. Very good book. One of my fellow member has given me that thing. Should read it. I read it. Liked it a lot. I suggest that everyone should go. I am not a person who says that you know ये चीजें करके मतलब लाइफ में inculcate करो, but हाँ वो पढ़ने से आपको पता चलेगा where we are going, how we should take the things. I'm sure you have read, you would have understood. Definitely. So this will help you motivate your own self. And if you were to give one tip to young educators or parents related to the students who are facing this, what would it be? One tip I would say, I would add 1 or 2 more. 1, don't be judgmental. Okay, बच्चा आके आपको कुछ भी बोल सकता है. कुछ भी मतलब in a way that you know I am having for example मुझे डर लग रहा है, तो आप इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना. ऐसा कुछ नहीं होता है, बैठ जाओ जाके. और कहीं वो बच्चा पास से पढ़ के आया है एक ग्रेड में जहाँ पे मे बी द इम्प्रेशन ऑफ द चाइल्ड वॉज नॉट दैट गुड. नाउ ही और शी केम टू दिस क्लास 1 साल ऊपर एंड यू समहाउ नो दैट उसकी इम्प्रेशन वहाँ पे वो थी. तो आप वही उसको कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ मत करना. टेक
the child as a new kid. Judgmental की बात आती है ना, because they come to the class assuming that I might have a new start. Right. So that is one thing. And third, very important, don't create stigma for any mental disorder or any condition. क्योंकि अगर आप बोल दोगे ना कि तुमने ये किया तो तुमको वहाँ भेज देंगे, तो बच्चा भी सीखता है. मतलब मैं अगर कुछ गलत करूँगा या गलत करूँगी तो मुझे काउंसलर के पास भेज देंगे, मुझे कोई साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे, ये वो. स्टिग्मेटाइज मत करो. मेंटल हेल्थ नीड्स अवेयरनेस, नीड्स टेक इट एज अ नॉर्मल थिंग. दैट एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, हमें बीपी डायबिटीज़ होता है तो हम कितना इजीली डॉक्टर के पास चले जाते हैं टू टेक द मेडिसिन. एनी पर्सन हु हैज़ प्रॉब्लम विद डे टू डे लिविंग will go. I think the best way to put it out is you need someone who can, you know, Yes. listen without A judging. person like me also will need. See, I am a therapist. I will also need someone if I face something, because मैं खुद की नहीं कर सकती Agreed. therapy. तो मुझे भी कोई चाहिए. मैं तो ऐसे ही लेती हूँ. If I'll need, I'll also go. मैं नहीं बोल सकती I am a therapist. How come I need? You know, anyone can need. बिल्कुल छोटा एडजस्टमेंट ले लो. अब स्कूल की बात चले तो हम एडजस्टमेंट बोल देते हैं. अ चाइल्ड हैज शिफ्टेड फ्रॉम अनदर सिटी, अनदर स्टेट. वहाँ की स्कूल, वहाँ का कल्चर, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अलग थे, यहाँ पे अलग. सो इनिशियल अ मंथ लेटर द चाइल्ड विल से दैट यू नो आई एम अनेबल टू, बिकॉज ट्रांजिशन नहीं हुआ है, यहाँ बहुत अलग चीज़ें हैं. तो दैट चाइल्ड इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. उसको खाली एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है. अब उसके लिए वो जाए, वो कोई ना कोई जाएगा काउंसलर के पास, लड़का लड़की जो भी है. तो उसमें अगर आप बोल देंगे कि भाई मैं एबनॉर्मल हूँ कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, नो, वी एज काउंसलर्स will always make you adjust to that school. कि भी क्या कर सकते हैं so that you adjust over here. Maybe we can make 1 or 2 mentors for you. Maybe we can change something that you like. No, थोड़ा initial कुछ ऐसा कर देते हैं कि you start adjusting, you start liking. पहला तो liking होता है. They don't like to come to school because मन नहीं हो रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है. So this is how I take it, that anyone can need. So if the educators will make it a normal process, the students will also.